رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب کے خلاف کارروائی کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ ایک نے یہ کہا ہے کہ اس کا وجود ہی مسئلہ ہے اور دوسرے نے کہا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ قلم کرنا چاہیے۔ عمران خان کی FIR آج تک درج نہیں ہوئی۔ احتجاج، یہ ریلیاں، یہ جلوس، یہ جلسے جاری رہیں گے۔ ان کی بھول ہے کہ یہ عمران خان کو، ہمارے ورکرز کو جیل میں رکھیں گے۔ جس طرح خان صاحب کے کیسز جلدی سے ان کو سزائیں سنائی گئی مختلف کیسز کے اندر، ان کے اس کیس میں بھی جلدی سے جلدی ان کی سزا سسپینڈ کر کے اور باقی کیسز بھی ان میں سزائیں سسپینڈ کر کے خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ نمبر 2، کل کور کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ زیر غور ہم لے کر آئے ہیں۔ ایک تو آپ کو بتاؤں کہ رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب کے خلاف کارروائی کرنے کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ کور کمیٹی نے یہ کل فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف ہم قانونی طور پر جو چارہ جوئی ہو سکی ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ نمبر 2، رانا ثناء اللہ کو جو TCS کے ذریعے اپلیکیشنز جو اس کے خلاف تھانہ حصار اور اس کے متعلقہ SP کے پاس بھجوائی تھی، اس کے اوپر بھی ریسیونگ کا میسج آ گیا ہے۔ تو ہم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں 22 AB کے لیے۔ وہاں پر ہم درخواست دیں گے کہ اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے کہ جو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے نازیبا زبان کا استعمال کرتے ہوئے، ایک نے یہ کہا ہے کہ اس کا وجود ہی مسئلہ ہے اور دوسرے نے، یعنی کہ وہ بی، اب میں اسے کیا کہوں، اس نے کہا ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ قلم کرنا چاہیے۔ تو اس کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے، اور تمام جو لیڈرشپ ہے اس کی، وہ اس کے اوپر کیا کسی نے اس کو نوٹس بھیجا؟ نہیں بھیجا، کیونکہ وہ خود اس سازش میں سارے شامل ہے۔ اس سے پہلے خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا اور عمران خان کی FIR آج تک درج نہیں ہوئی۔ آج آپ پھر دیکھ لیں کہ یہ خان صاحب کو دھمکیاں دے رہے ہیں جان سے مارنے کی، اور ان کے اوپر FIR درج کرنے کے لیے ہم نے درخواستیں دی ہیں، وہ درخواستیں قبول نہیں کی جا رہی، FIR درج نہیں کی جا رہی۔ اب ہم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں اور جہاں جہاں پر ہو سکا وہاں پر انشاءاللہ تعالی ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ نمبر 2، آپ کو بتاتا جاؤں کہ کل کور کمیٹی میں ایک اور اہم جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، MNAs، MPAs یا سینیٹرز یا جو ہمارے ہارے ہوئے جتنے لوگ ہیں، تمام جو ہے وہ ایک لائحہ عمل تیار ہو رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر ہم جائیں گے، بھرپور طریقے سے اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کریں گے۔ انشاءاللہ اسلام آباد کے اندر جلسے کے حوالے سے بھی کل مشاورت ہوئی ہے، تو جو ہی کورٹ سے اجازت ملے گی تو انشاءاللہ اسلام آباد میں جلسہ ہوگا۔ نمبر 2، کراچی میں جلسہ جو ہے اس کا انعقاد جو ہے حلیمہ عادل شیخ صاحب پوری اپنی تنظیم کے ساتھ، سارے MNAs MPAs کے ساتھ مل کر وہ سارے وہاں پر کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کوئٹہ کے اندر جلسہ جو ہے وہ وہاں پر انعقاد ہوگا، اور اسی طرح سے ہم پورے پاکستان میں یہ سلسلہ جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں، اور یہ سلسلہ اس وقت رکے گا جب عوام کا مینڈیٹ واپس کیا جائے گا، ہمارے کپتان کو رہا کیا جائے گا، تمام بے گناہ ورکرز، خواتین، بزرگ، ہمارے سینیٹرز، MNAs، سابقہ گورنر، جتنے ہمارے وہاں پر بے گناہ قید ہیں، ملٹری کے ٹرائل کے اندر لوگ ہیں، جو ملٹری کسٹڈی میں جو اس وقت لوگ ہمارے گرفتار ہیں، ان سب کی رہائی اور ملک کی خوشحالی کی طرف گامزن ہونے تک یہ جو احتجاج، یہ ریلیاں، یہ جلوس، یہ جلسے جاری رہیں گے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ ان کی بھول ہے، جن لوگوں نے عمران خان صاحب کے اوپر کیسز درج کیے، پوری پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا، ہماری ریزرو سیٹیں کسی اور کو دے دی گئی۔
जो उनका हक ही नहीं बनता था। ये इनकी भूल है कि इनसे मैंडेट वापस नहीं लेंगे, इनकी भूल है कि इनसे मखसूस नशिस्तें जो हैं, जो हमारी छीन कर किसी और को दे दी गई हैं, वो वापस नहीं लेंगे। और नंबर 3, इनकी भूल है कि ये इमरान खान को, हमारे वर्कर्स को जेल में रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला हर तरह की रेजिस्टेंस, मुज़ाहमत और हर तरह का जितना कानून के, आइन के पैरामीटर के अंदर रह के हो सका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरीके से वो करने जा रही है। कोर कमेटी ने बड़ा स्ट्रांगली, बड़ा सख्ती से इन तमाम चीज़ों के ऊपर नोटिस लिया हुआ है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कुछ दिनों में, और रमज़ान से ख़ास तौर पर बाद, आप देखेंगे कि ये सिलसिला जो है ये बदल गया। कोई है सवाल? ये बताएं कि गुज़श्ता रोज़ कोर कमेटी का इजलास था और वहाँ पे कोर कमेटी के मेंबरान के दरमियान तल्ख़ कलामी की कुछ खबरें हमारे सामने आई। क्या सदाकत है उसमें शेर अफजल मरवत की और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी के दरमियान जो तल्ख़ कलामी हुई, क्या वो हकीकत है, और अगर हुई है तो उसकी वजह क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि बातचीत हो जाती है एक दूसरे के साथ, वो जमहूरियत का एक हुस्न है और किसी को किसी दूसरे के ऊपर एक हक भी होता है। हम एज ए टीम है, हम एज ए पार्टी, हम एज ए ब्रदर्स, हमारा एक दूसरे के साथ गिले शिकवे हो सकते हैं, किसी के बयान के ऊपर हो सकता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त मीडिया की तवज्जो खान साहब के केसेस, अवाम के मैंडेट और जो मुल्क के अंदर जुल्म जबर हो रहा है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, इन सारी चीज़ों से हटाकर सिर्फ और सिर्फ लड़ाई और झगड़े की खबरें प्रोमिनेट करने के ऊपर लगाई जा रही है। तमाम वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पूरे पाकिस्तान को मैं ये कहता हूँ कि ये जो जंग है, इमरान खान आज लड़ रहा है, आपके बच्चों की मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा है। आज अंदर जेल में बैठ के अगर उसकी एक डिमांड है तो वो क्या डिमांड है? उसकी एक डिमांड है, वो कहता है कि मुझे कुरान पाक दो, वो कहता है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, वो कहता है कि मुल्क के अंदर खुशहाली हो। उसका तो कोई ज़ाती इंटरेस्ट नहीं है, वो सियासत में आया तो सिर्फ इबादत करने के लिए। तो आपने, अगर आप इस मुल्क को आज़ाद करना चाहते हैं, जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख्वाब देखा था, तो फिर आप सबको इमरान खान का साथ देते हुए आगे बढ़ना होगा और घरों में बैठ के जितना आपने सबने सोशल मीडिया के ऊपर, हर जगह के ऊपर आपने आवाज़ उठाई, गिरफ्तारियाँ दी, आपके ऊपर FIRs हुई, सारा कुछ किया, लेकिन ये जो वक्त है ये निकलने का है। हर तहसील से 2000 बंदा और एक ज़िले में 8 से 10 तहसीलें होती हैं, अगर देखें तो वो बनता है 20,000 के करीब एक ज़िले में, और 36 ज़िले पंजाब में हैं। अगर पाकिस्तान पूरे का हिसाब लगाया जाए तो 30 से 40 लाख बंदा अगर एक टाइम में निकल आए, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। और इनकलाब तभी आता है जब आप कुर्बानियाँ देते हैं। तो आपको सबसे पहले खुद को ये करना होगा कि सबसे पहले गिरफ्तारी देने के लिए मैं तैयार हूँ, सबसे पहले गोली खाने के लिए मैं तैयार हूँ। जब आप ये अहद कर लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला आपका मुल्क खुशहाल होगा। इसके बाद दूसरा कौन सा इनकलाब आना है सर? देखें, 8 फरवरी को जो खामोश इनकलाब आया है ना, वो आपने देखा, ये घुस बैठी है जो आज बैठे हुए हैं फार्म 47 की पैदावार, ये आप देखेंगे, ये जो इनकलाब जो इमरान खान कहता है कि घर से निकलो, खान का ये पैगाम है कि जिस वक्त वो कॉल दे तो पूरा पाकिस्तान निकले, और फिर इंशाअल्लाह ताला जीत हक की है, आपकी है, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिस तरह आपने बताया कि जलसे की इजाज़त नहीं मिलती तो हम हर हाल में करेंगे। पिछली दफ़ा जो आपने रैली निकाली है उसमें आपने छोटी सी एक रैली निकाली थी आपके वर्कर पे, और आप सब पे जो है पर्चे किए गए हैं, ठीक है। अब आप ये करते हैं जलसा, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ बड़ा करेंगे। अब वो छोटी सी रैली पे उन्होंने आप पे पर्चे किए हैं, तो जलसे पे तो वो कुछ बड़ा नहीं। मैं ये गुजारिश की है कि हर तहसील से अगर 2000 बंदा निकले ना जी, कम से कम मैं कह रहा हूँ, तो फिर आप देख लें कि पाकिस्तान में 40 से 50 लाख बंदा एक टाइम में निकल सकता है। अच्छा सर, अगर जलसे से पहले आपकी गिरफ्तारी जब आप लाखों की तादाद में होंगे तो फिर कोई मसला, और गिरफ्तारियाँ, ये पर्चे, ये होते रहते हैं सर, कोई इशू नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि 30,000 लोग अगर मेरे साथ आए
तो मैं जो मैंडेट चोरी किया हुआ है उसको मैं वापस ला सकता हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि पीटीआई के पास अभी 30,000 लोग नहीं है कि वो निकाल सकें। देखिए उन्होंने जो बात की है वो की है कि 30,000 बंदे सर पे कफन बांध कर उस तरह से निकलें कि अब गोली खानी है। उन्होंने उस तरह से बात की है, तो अब सर पे कफन बांधने का टाइम आ गया है। ये पूरे पाकिस्तान को निकलना होगा, फिर ही आपकी आज़ादी हो सकती है। इंशाल्लाह कप्तान जीतेगा, कप्तान हमारा सुरखरू होगा और मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगा। फ़लस्तीन के भाइयों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, फ़लस्तीन के अंदर ये सारी जो बर्बरियत है ये बंद होगी इंशाल्लाह ताला। दुनिया में मुसलमानों का एक मुकाम ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो अब तक जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है या वकला है वो यहाँ पे आते हैं और केसेस सुन के उसके बाद मीडिया को ब्रीफ करके वापस चले जाते हैं। अमली हमें कहीं पे नहीं दिखा। अमली आपने देखा कि पिछली दफ़ा भी एहतजाज लीड किया है, इधर से वकीलों ने किया इस्लामाबाद। मैं सरगोदा में पूरा काफिला लेकर आया हूँ। तो जितनी हो सके मज़ीद करें, क्योंकि ये बहुत काम है और हर एक को इसमें हिस्सा अदा करना है, आपको भी करना है, फिर इंशाल्लाह ताला जीत। शुक्रिया।